studying about is matter around us pure. So यहाँ पर हमने कहा था complete करें, तो we have completed still. We need to go further, and we have completed till concentration of a solution. We have completed this, and this formulas and this maths I have said you. And what is a suspension? So I will be starting with what is a suspension. At the last video I have also said you what is a suspension. I have given overall idea of what is a suspension, colloidal and all, but I'm going to explain it again in a proper manner. So what is a solution? Non-homogeneous systems like those obtained by group C. So the group C, what they have did is that they have mixed. So they have mixed, it is the beaker, they have mixed wheat flour, or we can say chalk powder in water, so that solute has dispersed in the solvent. So we are getting here what kind of solution? Suspension solution. So it is a suspended solution. So it is suspended, it is dispersed all over the solvent, and if we keep it steady for some time, we keep it stable for some time, then we will see that the solutions, the leftover things, it will be coming at the bottom, it will be settling, the solute will be settling at the bottom of the beaker, and this all dispersion will, all suspended and dispersed things will go up. So after we add after it is stable, we have kept it at the bottom of the beaker, it gets stable, it settles at the down of the beaker. So it settles at the down of the beaker. So we get to see what, that it is dispersed and suspended, then it has been settled at the down. So we can say that suspension is unstable, it is not stable, because if in another kind of solution, the before solution I have explained you what was that solution, that was, I think, concentration of a solution. So it was a different topic. So suspension is a kind of solution in which the solute or the particles which is mixed in the solvent does not remain stable. After some time, if we keep it stable for some time, then it goes down, so it moves to the downward direction. So here the solute is not stable. So now I go further for the properties of a suspension. So what are the properties? क्या होता है सस्पेंशन का? प्रॉपर्टीज क्या होता है यहाँ पर? तो सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है. हेट्रोजेनस मतलब नॉन होमोजेनस, मतलब कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होता है, और ये सेटल डाउन हो जाता है नीचे बीकर के, कोई भी एक एपरेटस के नीचे, ये जिसमें ये मिक्स किया गया है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई. हम किसी भी इसको देखने के लिए किसी भी माइक्रोस्कोपिक मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है, हम इसे खुले आंखों से आराम से देख सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इफ़ वी मिक्स व्हीट फ्लोर या फिर हम चॉक पाउडर मिक्स करते हैं, तो आराम से हम देख सकते हैं उनके पार्टिकल्स को एनफ बिग होते हैं. ठीक है. द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल. तो यहाँ पर क्या होता है, वी आर गोइंग टू नो दैट. So if we mixed wheat flour or chalk powder, so if we mix wheat flour or chalk powder in a solvent, if we mix solute as wheat flour or chalk powder, then we come to know that if we pass a beam of light, if we pass a light from a source of light, such as I am telling about a torch, okay, a torch light is being passed through this beaker. So when it is as soon as we mix and it disperse all over the solvent, that time if we give the light, then it will pass. But if after it settle down, after the solute settle down, it does not disperse any kind of light. So अगर आप इसको अनस्टेबल करके रख देते हो कुछ देर के लिए, जब ये जितना भी सॉल्यूट नीचे चला जाता है, तब अगर हम अभी लाइट करने को जाते हैं, तो ये लाइट नहीं जाता है, ये वापस आ जाता है, या फिर ये जाता ही नहीं है, पास ही नहीं होते बिल्कुल भी. ठीक है. यहाँ पर ये चौथा नंबर पॉइंट में है कि द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन द when a suspension is left undisturbed, that is a suspension is unstable. They can be separated from the mixture by the process of filtration. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter anymore. तो यहाँ पर जो है एक किसी भी टाइप का लाइट स्कैटर नहीं करता है. ओके. व्हाट इज अ कोलोडियल सोल्यूशन? तो हम कोलोडियल सोल्यूशन में आ जाते क्या है, तो द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी. तो ग्रुप डी ने क्या डाला था? ग्रुप डी ने डाला था इंक, एनी काइंड ऑफ कलर्ड पेन इंक का आप इंक डाल सकते हो वाटर में. इफ़ वी मिक्स लिक्विड इन लिक्विड, सो वाटर एक लिक्विड है, हम उसमें क्या डाल देते हैं? इंक डाल देते हैं, कुछ ड्रॉप्स का इंक हम डाल देते हैं. ठीक है. हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा, जब हम इसमें ऐसे इंक डाल देते हैं, अगर हमने इंक डाल दिया तो क्या हो जाता है, पूरा पानी जो है नीला हो जाता है. जितना भी अमाउंट में होता है, थोड़ा बहुत तो होता है. अगर आप बहुत कम अमाउंट में डाले तो बहुत कम अमाउंट में, अगर ज़्यादा अमाउंट में डाले तो ज़्यादा अमाउंट में रंग जो है, कलर वो विग्नेट होता है. ठीक है. सो अगर हमने ज़्यादा इंक डाल दिया तो कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ब्लू ज़्यादा डार्क हो जाएगा. अगर कम डाला तो कम हो जाएगा. तो उस स्टेप पर लेकिन ये कलर चेंज होता है इसमें. ठीक है. सो इट्स ईजी, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. ग्रुप डी ने जो किया वो कोलोडियल सोल्यूशन. द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन. हाँ, क्योंकि पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है, इसलिए वो कलर छोड़ता है, वो इंक का कलर पानी पर छूट जाता है, तो पूरा ब्लू हो जाता है. तो इसलिए यहाँ पर ये लाइन इसलिए दिया गया है. ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन, द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनस. तो ऐसा लगता है कि क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं, हमको लगता है कि ये होमोजेनस है, लेकिन हम इसे फिजिकल प्रोसेस से हम इसे क्या कर सकते हैं, फिजिकल
वो प्रोसेस से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसे सेपरेट कर सकते हैं वाटर से इंक को. द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर. सपोज इफ वी टेक फॉर एग्जांपल मिल्क, तो मिल्क और पानी को हम अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज, बाय फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स. ओके, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स वी कैनॉट सी देम विथ naked eyes, but these particles can easily be scattered a beam of light visible light as observed in activity 2.2. तो यहाँ पर 2.2 में क्या दिया गया कि अगर हम एक सपोज ये कोलोडियल सोल्यूशन है, इट्स ए कोलोडियल सोल्यूशन, सी फॉर कोलोडियल सोल्यूशन, हम बीम ऑफ लाइट देते हैं तो ये क्या होता है, पास थ्रू आराम से हो जाता है. तो ये है यहाँ से पास थ्रू हो जाता है लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब टिंडल इफेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पर टिंडल इफेक्ट दिया गया है. दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट. और जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया उनका नाम था टिंडल. सो इट इज अ टिंडल इफेक्ट. ओके, Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. Okay. Tyndall effect हम अपने नेचर में भी देख सकते हैं जब लाइट पास थ्रू होता है किसी भी सब्सटेंस से. ओके, नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट. Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as particles of colloid. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर Tyndall effect एकदम easily आपको समझ में आ जानी चाहिए. जब पहला किरण पड़ता है सूरज का किसी भी जंगल में, किसी भी घने जंगल में, तब जो ये गैप से छोटे छोटे गैप से ट्रीज के बीच में, घने जंगल में तो बहुत पेड़ होते हैं, तो ये छोटे छोटे गैप से वो लाइट पास थ्रू होता है वन बाई वन. ये डिस्पर्स होते हैं छोटे छोटे लाइट से, जब एक इस तरह से गिरता है तो पास थ्रू हो जाता है. तो इसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट. आप इसे नेचर में भी कभी बहुत जगहों पर आप बहुत एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे. जैसे कि आप अगर चाहे तो यू कैन सी इट इन आवर हाउस ऑल्सो व्हेन इट जस्ट मॉर्निंग, जब सनराइज जस्ट होता ही है, अगर आपके घर में कहीं एक छोटा सा शेड है और वहाँ से जब लाइट आता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा घर में वो लाइट स्प्रेड हो जाता है. वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है. ठीक है, या फिर टिंडल इफेक्ट मतलब स्प्रेड नहीं होता है. एक्चुअली क्या होता है कि सपोज ये वाल है, यहाँ पर होल है, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है, स्प्रेड नहीं होता है. नो स्प्रेड नहीं होता लाइट, स्ट्रेट लाइन में ऐसे ये पास थ्रू कर जाता है. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलोइड. अ कोलोइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज. तो हम क्या एक कोलोइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. जैसे कि मैंने बोला कि होमोजेनस नहीं, क्योंकि ये डिवाइड किया जा सकता है सॉल्यूट को सॉल्वेंट से. ठीक है, इससे डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए हेटेरोजेनस. इट्स नॉट होमोजेनस, नॉट. The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. तो क्या होता है कि the size of the particles of a colloid is too small, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि पानी को अगर आप डिवाइड करोगे, इसके एटम्स में डिवाइड करोगे, आप यू आर अनएबल टू सी इट बाय naked eyes. लेकिन यू कैन सी इट बाय माइक्रोस्कोप, बट naked eye से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी, यू कांट सी. Colloids are being enough to scatter a beam of light. ये स्कैटर कर सकते हैं beam of light passing through it and make its path visible. इसका पाथ जो है वो विजिबल, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में पाथ जाता है, मतलब थोड़ा सा स्प्रेड स्कैटर करता है, ज़्यादा नहीं, मतलब ये जाता है तो इसका पाथ ये जो है वो विजिबल होता है आप कि किस तरफ से आ रहा है लाइट और कहाँ से जा रहा है. सपोज इस तरफ से आ रहा है तो इस तरफ से दिखाएगा आपको टिंडल इफेक्ट में ये. और कोलोइड जो है वो दिखाता है अगर कोई लाइट पास थ्रू होता है, इसका डायरेक्शन भी दिखाता है. अगर इस टाइप से अगर यहाँ से ही वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, यहाँ से आ रहा तो यहाँ से जाएगा, तो वो दिखाता है इसमें. ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, लेकिन दूसरा प्रोसेस है, बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफिकेशन. तो इट इज़ अ फिजिकल टेक्निक, फिजिकली हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलोइडल पार्टिकल्स. हाँ, इसे हम कर सकते हैं. कोलोइडल पार्टिकल्स को आराम से, सॉल्वेंट को, जो सॉल्यूट है वो कोलोइडल पार्टिकल है और जो सॉल्वेंट है वो वाटर हम ले लेते हैं. कोई भी आप लिक्विड ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, वहाँ पर हम कर लेते हैं. The components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. The solute-like component or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. तो यहाँ पर क्या हमको दिखाई दे रहा है कि the solute-like component or the dispersed particles, solute-like component, कोई भी component, solute-like component और the dispersed particles, या फिर हम dispersed particles को पकड़ लेते हैं in a colloid, form the dispersed phase. तो ये जो कंपोनेंट है और जो तुम्हारा डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स है, टुगेदर इट फॉर्म्स अ डिस्पर्स्ड फेस. टुगेदर इट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेस. द कंपोनेंट एंड द कोलोडियल फॉर्म और डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स. ठीक है, कोलोडियल फॉर्म नहीं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स. ओके, सो यू कैन सी दैट डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेस कंपोनेंट 1 और हम 2 लिख देते हैं, तो ये दोनों मिलकर ये डिस्पर्स्ड फेस बनाता है. एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम. सो सपोज हम अभी ये यहाँ पर हम इंक डाल दिया, तो इंक में ये इंक जो है पानी में डिस्पर्स हो गया, स्प्रेड हो गया, तो वो पानी जो होगा वो होगा डिस्पर्सिंग मीडियम, क्योंकि इसी के द्वारा ये डिस्पर्स हुआ है. अगर पानी नहीं होता तो ये डिस्पर्स कैसे होता, ये डिवाइड स्प्रेड कैसे होता. तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ वी गो फर्दर फॉर इट. कोलोइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो कोलोइड क्या होता है, वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है. कोलोइड जो है ओनली लिक्विड नहीं होता है, इट इज़ सॉलिड ऑल्सो, इट इज़
काइंड ऑफ लिक्विड ऑल्सो एंड इट इज़ गैस ऑल्सो। तीनों स्टेट्स में जो होता है वाटर का स्टेट्स फिर वो हमको मिल जाता है कोलोइड में, ठीक है। ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेस, ओके, बोथ डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है और डिस्पर्स्ड फेस भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। ए फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन टेबल 2.1। यहाँ पर एक टेबल है 2.1 का, ये आप देख लो, यू जस्ट रीड इट आउट, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है ये, आपको समझ में आ जाएगा। तो वी गो फॉर फर्दर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे किया जाता है। हाउ डू यू सेपरेट द कंपोनेंट्स। आपको लग रहा होगा सेपरेट कैसे करते हैं कंपोनेंट्स को, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि कैसे सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट समरी काइंड ऑफ मतलब दिखाया गया, यू कैन लुक एट। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। सब चीज़ जो होता है वो केमिकली प्योर नहीं होते, कोई चीज़ होता है कोई चीज़ नहीं होता है, लेकिन सब तो नहीं होते ना। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। तो डिफरेंट मेथड्स यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को अगर हम क्या करते हैं कि इसको हम ठंडा करते हैं, तो वहाँ पर कैसे हम ठंडा करते हैं तो इससे हमको क्रिस्टल्स मिल जाता है, ठीक है, कॉपर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। और जैसे कि अगर हम अभी नमक जो है ना उसे भी हम उसी तरह से नमक को भी हम पानी से डिफरेंटली निकालते हैं। और फिर अभी हम अगर करें कि हमें क्या करना है कि अभी हमको क्या करना है कि इंक को निकालना है पानी से, ओके। इफ़ वी नीड टू टेक आउट इंक फ्रॉम वाटर देन वी नीड टू डू सेंट्रीफिकेट इट, वी नीड टू डू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफिकेशन। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड टू टेक आउट टू सेपरेट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेपरेशन मेक इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो इस तरह से हम पानी से हम नमक निकाल सकते हैं, तो हम पानी को भी यूज़ करते हैं और नमक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पानी को हम प्योरीफाई करके यूज़ कर सकते हैं, नमक को हम नमक बनाकर पैकेजिंग करके हम यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स को डिफरेंट वे से हम यूज़ कर सकते हैं। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू द रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग। तो सीविंग फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन अ डे टू डे लाइफ। हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होते हैं वो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं होते हैं, जैसे दे डू नॉट मिक्स एट ऑल, मतलब दे जस्ट गेट टू द बल्क एंड इट डज नॉट मिक्स, ओके। तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि हम इसको सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, हाथ से चावल को धान से हम निकाल सकते हैं, चावल धान हम अलग कर सकते हैं ईजिली। सीविंग हम कर सकते हैं, सीविंग पता होगा आपको दैट व्हाट वी डू विद आवर राइस एंड व्हीट। तो सीविंग एंड फिल्ट्रेशन इन डे टू डे लाइफ, तो फिल्ट्रेशन हम करते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए। लेकिन सम स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। लेकिन जब हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ स्पेशल टाइप के, जैसे कि हमने देखा कि कोलोडियल सोल्यूशन जो है, एक जो कोलोइड है उसे हमें सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेंट्रीफिकेशन करना पड़ता है। ये एक टेक्निक है, फिजिकल टेक्निक है, लेकिन ये ईजी नहीं है, इट इज़ अ बिट ट्रिकी। सो इस टाइप का आपको कभी कभी करना भी पड़ता है, अगर इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय सिंपल सेपरेटिंग मेथड, ठीक है। तो हम देखते हैं हाउ कैन यू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। या यही जो है हमें इसी से हमको पता चलेगा। तो इंक से जो है हम कलर्ड कंपोनेंट और वाटर और लिक्विड को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। फिर हाफ अ बीकर विथ वाटर हम क्या करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, उसे हाफ हम भर लेते हैं, पूरा नहीं भरना, यहाँ तक नहीं भरना, सिर्फ हाफ भरते। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास में तो यहाँ पर दिखाया गया है अच्छे से, यू कैन सी दिस वॉच ग्लास है यहाँ पर, ठीक है। यू कैन पुट अ वॉच ग्लास। We do not want to heat the ink directly. We will see that evaporation is taking place from the watch glass. यहाँ पर जो इस watch glass से हम देख सकते हैं कि evaporation किस तरह से प्लेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिखाई गया ये जो है ये watch glass है, ये evaporate हो रहा है, इस तरह से हम देख सकते हैं, इजिली देख सकते हैं, ठीक है। Continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. अगर तुमको कोई और चेंज नहीं दिख रहा है तो तुम रोक दो, इसे हो जाएगा। To see any further change चेंज, हाँ, ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो आप इसे यूज कर सकते हो, स्कूल में भी कर सकते हो, क्या जब होगा। तो अब हम देखते हैं, वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। तो इंक क्या होता है, वो एक डाई होता है, एक कलर होता है जो पानी में मिला हुआ होता है, ठीक है। डस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट, मतलब सॉल्वेंट, फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल होता है जो इजीली एवापोरेट हो जाता है, जो इजीली जो है एवापोरेट होता है। एंड नॉन वॉलेटाइल इज दैट विच डू नॉट गेट एवापोरेटेड इजीली, विच रिक्वायर्स टाइम टू गेट एवापोरेट। जो मतलब इजीली एवापोरेट नहीं होते, वो नॉन एवापोरेटेड थिंग्स होते हैं, ठीक है। हाउ कैन यू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। सो हाउ कैन यू सेपरेट अ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब जो क्रीम बटर घी ये सब होता है हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सेंट्रीफिकेशन से हम लोग करते हैं, देखते कैसे करते हैं। नाउ डेज वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉली पैकेट्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। दिस वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। तो ये सबको ना डिफरेंट टाइप के फैट्स हैं इनमें।
टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, हम क्या लेते हैं फुल क्रीम मिल्क लेते हैं, ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब कुछ इस टाइप का देखने में होता है, हम फुल क्रीम मिल्क सेंट्रीफिकेटेड बाय यूजिंग सेंट्रीफिकेशन मशीन, अगर आपके पास सेंट्रीफिकेशन मशीन है तो उससे कीजिए, वरना आप एक चर्नर ले सकते हैं। चर्नर क्या होता है कि यू कैन फाइंड इजिली एट योर होम, जो ऐसा टाइप का चीज़ होता है ना वो उससे चर्नर कहते हैं, वी से इट churner, okay, it's a churner. You can do this activity at home by using milk churner, जो मैंने आपको अभी बताया, and in the kitchen if you have used in the kitchen, if you have a milk dairy nearby, visit and ask how they separate cream from milk, how they make cheese paneer from milk, okay, you can do it, but अभी तो आप मत निकले because we have corona around us, don't go out. Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. Sometimes क्या होता है कि जो आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो इतना सॉलिड पार्टिकल या फिर सॉल्यूट होता है वो इतना छोटा होता है वो मतलब फिल्टर पेपर से भी निकल जाता है, इट्स सो टाइनी. फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन सच मिक्सचर्स एज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफिकेशन. जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि कोलोडियल सोल्यूशन जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, लेकिन हम इसे सिंपली सेपरेट नहीं कर सकते, हम इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट, because they are really very tiny, very small in size, for that it does not get separated by filtration process, ठीक है, filtration से process नहीं होता, इसलिए हम centrifugation use करते हैं. The principle is that denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. So when we spun the churner से when we spun it, what it happened is that the bottom and the lighter particles stay at the top. So हम ये suppose पर हम मिल्क ले लिया, हम इसे चर्नर से जो है चर्नर we use churner and we just mixed it. So what will happen after we remove the churner? We will see जो lighter particles हैं, छाछ टाइप का जो होता है ना वो ऊपर रह जाता है, और जो आपका होता है हैवी पार्टिकल्स क्रीम टाइप का चीज़ है वो नीचे रह जाता है. तो फिर उसी टाइप से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं. Used in diagnostic laboratories for blood and urine tests, used in dairies and home to separate butter from cream, used in washing machines to squeeze out water from a wet cloth. कर लिया कि यूज इन डायरीज होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. सो ये सब आप अगर एक बार रीड आउट कर लीजिए, आप मेरे वीडियो को और एक बार देख लीजिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया. पहला वीडियो जो मैंने डाला था अपने चैनल में, यू गो टू माई चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए पहले तो, प्लीज़ सब्सक्राइब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब. तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लाइक कर दीजिए वीडियो को, फिर शेयर कर दीजिए, और आज तक का जो वीडियो है यहीं पर जो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वो आप लोग समझ लीजिए, ओके. सो क्या है कि आपको क्या करना है कि अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है अब तक मैंने जितना पढ़ा है तो गो टू माई प्रीवियस वीडियो, इट इज़ इन माई चैनल, देखा दिया गया है वो फर्स्ट पार्ट. तो ये सेकंड पार्ट है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर. थर्ड पार्ट मैं जल्दी लाऊंगी 3-4-5 दिन में. तो टिल दैट टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, एंड प्लीज़ शेयर टू योर फुलेस्ट, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, सबको पढ़ाई की ज़रूरत है. यू ऑल नीड टू स्टडी एंड वर्क हार्ड टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट. और आपको डॉक्टर अगर बनना है तो ज़रूर बनिए, क्योंकि इस कोरोना को भगाना है जल्द से जल्द. तो बाय बाय.